ओके। और क्या बताया था मैंने आपको कल? माइकल फैराडे की बायोग्राफी। माइकल फैराडे की बायोग्राफी, ठीक है। और क्यों हमको पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? उसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, जैसे जैसे विंडमिल, पेसमेकर और एक था एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो ये किरण जी कहाँ चली गई? नाम दिखा रही मुझे। किरण जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। कल जो जहां पर थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, let us start. So today's topic is magnetic flux. First of all, Mr. Faraday found that the current is induced if amount of magnetic field passing through a coil or loop changes. ठीक है, ये कल हमने देख लिया था। इसके अलावा मैंने कल आपको थोड़ा सा वो भी समझाया था कि जो एक लूप होता है उस लूप को थोड़ा सा समझते हैं हम। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। Am I visible? Yes sir. यस सर, visible. Just a minute. Okay. Let me first explain what I have tried to show you yesterday. Okay, suppose this pen is visible. Yes, sir. This Yes, pen sir. is okay, good. This mobile phone is visible. Yes, sir. So pen and mobile phone. My mobile phone, suppose it is a circular, it is a rectangular loop. What it is? It is a rectangular loop. Is that okay? And this Yes, pen sir. is in the direction of magnetic field. Okay? Yes, This sir. pen is in the direction of magnetic field. So if I have placed my rectangular loop like this, okay, can you see that? Yes, I'm sir. placing perpendicular. My pen is magnetic field and my phone is the rectangular loop. So you can see all the magnetic field is crossing the loop. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it understandable? Yes or no? Yes, sir. Yes. But if now I try to rotate this mobile phone, I'm rotating in this direction. Okay. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. And now I have rotated like this. Now this plane and this pen, both have become parallel. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. So now no magnetic Yes, field sir. is crossing this surface. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं? जब ये ऐसे है तो ये ब्लू पेन इसके सरफेस के अंदर जा रही है, लेकिन जब ये ऐसे हो गया तो ब्लू पेन उसके पैरेलल हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो लूप है वो क्या हो गया है? पैरेलल हो गया। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. उस केस में यहां से फ्लक्स पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है? Yes, ओके, sir. चलिए तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस okay, so let us move forward. So this is what I was trying to say. Can you see that slide, beta? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So the slide is saying कि my phone, this is my phone ना, so my phone is perpendicular, so the
maximum flux is passing through it, yes or no? All the flux Yes. is passing through it. But Yes, if sir. I put my phone like this parallel to magnetic field, then my flux becomes 0. In this case, flux is maximum, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And in this case, obviously from maximum, if it is becoming 0, so this will be phi in between. Okay. Yes. Yes, This is maximum front view, and when I have rotated this, I'll rotate it like this, then the surface area will reduce. Initially you can see 1 2 3 4 5, so 5 dots of magnetic field are crossing. When I am rotating like that, ठीक है, ऊपर वाले को मैं अंदर की ओर ढकेल रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर आगे की ओर खींच रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है, उसका टोटल एरिया जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो कम हो जा रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है इस केस में, रिड्यूस हो रहा है, यस और नो? yes, sir. ठीक है। तो जो मेरा इफेक्टिव एरिया होता है ना किसी भी कॉइल का, जो इफेक्टिव एरिया है, वैसे तो कोई कॉइल है तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, सपोज देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ a एंड ब्रेड्थ b, तो उसका टोटल एरिया तो a इंटू बी होता है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो? Yes, sir. But the effective area is a into b into cos theta, which I'll show in next slide. You can see in this, okay? Here magnetic field and the coil both are parallel, so in that case my angle theta is 0 degree. My angle theta is 0 degree. But now if I have rotated this like this, and this end will go up, means it has gone down. So now my effective length has reduced. Initially it is this long, and now it has become b cos theta. Okay? ठीक है, चलो उसको फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। Just a minute. Okay. So this is what I'm saying. चलो पेन को हटा देते हैं, बुक के थ्रू समझाते हैं। सपोज दिस इज अ बिग सरफेस, आपको दिख रहा है सरफेस? Yes, sir. तो जब आप ऐसे देख रहे हो सरफेस को, ठीक है, तो मैक्सिमम बुक दिख रही है आपको। जस्ट अ मिनट, जिससे आपको अच्छे समझ में आए वो चीज मुझे करना है। Suppose I'm talking about this page. Okay, can you see the page? Yes, sir. But as I am rotating the page, you can see the area of the whiteness of the page is reducing. Are you getting my point? What I'm trying to say? Yes, sir. और अब जब मैंने ऐसे एकदम पैरेलल कर दिया तो एरिया उसका क्या हो गया, बहुत ही कम हो रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, 0। Yes, sir. और फिर जब मैं रोटेट किया आपके पैरेलल लेकर आ रहा हूं तो एरिया फिर से क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम। Yes, sir. और फिर से अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो फिर से एरिया इसका क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो बस इतना ही मुझे आपको समझाना था। चलिए, so is that is slide is available on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलिए आगे चलते हैं अब हम। हाँ, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला जो पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेम्ड और कॉल्ड एज वेबर। क्या साइंटिस्ट था एक, उसके नाम पे इसको रखा गया। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? Weber. वेबरा, नॉट वेबरा बेटा, वेबर। ओके, Yes, एंड 1 वेबर इज, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलरेडी देखा था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया।
कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी इंटू ए। तो एरिया का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर। यस और नो? ऐसा यूनिट? Yes, sir. एंड Yes, फॉर sir. मैग्नेटिक फील्ड इट इज टेस्ला। व्हाट? मिस्टर टेस्ला। Tesla. Nicholas Tesla. Tesla is the most intelligent scientist ever happened on Mother Earth. अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव होती। ठीक है, इन पे मैं बाद में कभी प्रवचन दूंगा। फिलहाल आप टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। तो 1 वेबर इज बिकॉज 5b इज b into a, यूनिट ऑफ b इज टेस्ला एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो ये डेफिनेशन आपसे सीबीएसई पूछ सकती है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पहला तो ये जाना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, A उस कॉइल का एरिया है, रेक्टेंगल देगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कल देगा तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. थीटा उन दोनों Yes, के sir. बीच का एंगल है। थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया और फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसकी एसआई यूनिट क्या कहलाती है? Weber. Weber. If CBSE asks what is the definition of Weber, then you will say if 1 Tesla of magnetic field passes through 1 meter square of area, then we say 1 Weber of flux, magnetic flux is associated with it. क्या बोला मैंने? Repeat करिए. If 1 Tesla of electric 1 Tesla of magnetic field passes magnetic through field passes through a unit square area. 1 meter square area, okay, then we say that Yes, sir. 1 Weber of flux is passing through it. कोई दिक्कत? No, sir. No, And sir. it is a scalar quantity. What kind of quantity it is? Scalar. Scalar. Scalar quantity. आपके लिए होमवर्क है, आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताएंगे मुझे। क्या? Dimensional formula. Dimensional formula. ये कल मुझे कोई बताएगा, जो बताएगा उसको मैं वाइवा में मेरी तरफ से 1 नंबर पक्का। मतलब मैं आपसे 30 क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपने पूरे 30 क्वेश्चंस के मेरे को आंसर दिए तो आपको 30 आउट ऑफ 13 प्रैक्टिकल पक्का मेरी तरफ से। Yes, sir. फेयर डील? फेयर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कल जो मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताएगा उसको 1 मार्क्स पक्का है प्रैक्टिकल में। मतलब अभी तो टोटल 30 मार्क्स का होता है, लेकिन मेरी तरफ से एक एक करके ही भरूंगा ना, एक साथ थोड़ी 30 आउट ऑफ 30 दे दूंगा एक क्वेश्चन के लिए। Yes, sir. ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट। तो वो यही कह रहा था, समझे। मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर से एक बार डिफाइन करते हैं हम। मैग्नेटिक फ्लक्स इज, एक कोई लूप है तो उसका कुछ एरिया होगा। ठीक है? लेकिन एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी जो है वो वर्टिकली है, तो इन दोनों के बीच का एक एंगल है थीटा। तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। चलिए अब क्वेश्चन बताइए, इस पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच लूप हैज लार्जर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट? बताइए किस लूप से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? दूसरा वाला क्या होता है? लूप। ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन के हिसाब से इंग्लिश में B. आंसर इन इंग्लिश। Option B. Loop B. लूप बी। Why? In loop A, I can count 1, 2, 3, 4. In loop B, I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviously, area is also big and number of field lines is also greater. So my answer will be Option B. option B. Next. A loop of wire area A stepped at an angle theta. Okay, ये आपको लूप दिया गया है और आपको एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, ये एरिया वेक्टर A है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है और इसके बीच में एंगल कितना दिया है मुझे? थीटा। Theta. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है मैक्सिमम फ्लक्स occurs for an angle theta equal to 0. Obviously, I know cos 0 is what? Cos 0 is what? 1? Yes, sir.
Yes, sir. पता है ना, 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। cos 0 पे मेरे को फाई क्या है, मैक्सिमम है। फाई क्या है? तो cos के किस एंगल पे Maximum. मेरे को फाई का मैक्सिमम का हाफ रहेगा? क्या बोल रहा है? फ्लक्स इज हाफ ऑफ 60 degree. मैक्सिमम। ऑब्वियसली मेरे को पता है cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ। तो क्या ऑप्शन Yes, मेरा sir. रहेगा? 1/2. आई बात C. समझ में? ये क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos 0 पे 1 है तो cos के क्या वैल्यू पे हाफ हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। Cos 60. ओके, cos 60, गुड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बताइए, कौन जवाब देगा इसको? पढ़िए। द मेटल लूप इज बीइंग पुल्ड थ्रू अ यूनिफॉर्म फील्ड, इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजिंग। अगर ये मेटल लूप को मैं इधर खसका भी रहा हूं, स्टिल मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना। फील्ड क्या है यहाँ पे? Constant. 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 तो जब इधर मैं इधर से मान लो इसको खसका के मैं इधर ले आया, ठीक है, तो ये 4 डॉट्स बाहर गए, Yes, लेकिन sir. 4 डॉट्स अंदर भी तो आ गए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो Yes, गया? sir. चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? No. Constant. तो इसलिए मैं किस पे टिक करूंगा? No, sir. नेक्स्ट No. इसमें बताइए। मेटल लूप इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म फील्ड। अभी मैंने आपको व्हाइट पेपर से कुछ दिखाया था। यस सर, इसमें Yes, यस sir. होगा। हाँ, Yes. अभी व्हाइट इसमें पेपर से yes आपको होगा। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? अगर मैं Yes इसको होगा। रोटेट करते जाऊंगा तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, चेंज होते जाएगा। ये जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया रिड्यूस होगा कि Reduce नहीं होगा। होगा? यस सर, रिड्यूस होगा। तो इसलिए Yes, इस केस में फ्लक्स क्या हो रही है? चेंजिंग। फ्लक्स इज चेंजिंग। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है आगे। सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन फॉर मी। हु विल रीड? सर मैं रीड करूं?